हालामनि रादाबा बरायबाय। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्राया आसाम सरकारनिफ्राय गोख्रों हेंथाजों मोगा-मोगि जानांदों। कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गांधीनि भारत जोड़ो न्याय यात्राया मंगलबाराव मेघालयनिफ्राय आसाम रायजोआव हाबफैबाय। बे दावबायनायखौ आसाम पुलिसआ सिमायाव होबथादों आरो बेखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिसिम थांनो गनायथि होनाय जायाखै, जेराव राहुल गांधीआ फरायसाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होनो गोनांमोन। कंग्रेसनि बुंथिगिरि रणदीप सुरजेवालाया अजद होदों दि बेरिकेड फज'नानै आरो बोलो बाहायनानै राहुल गांधीनि दावबायनायखौ होबथानो फान्दायदों। बिथाङा बुंदों दि कंग्रेस मंत्रिफोर आरो मददगिरिफोरा सिगिनायनिफ्राय जेबो गिनाय नङा आरो सुबुंफोरनि मोनथायनि थाखाय गावसोरनि गोजोन हानजा सुरनायखौ बेबायदिनो सोलिहोबाय थागोन। बेराफारसेथिं शर्माया कंग्रेसखौ नक्सली आदब लानाय आरो रायजोआव गुलाय-गुजाय सोमजिहोनायनि थाखाय सोंखारिदों। कंग्रेसनि बुंथिगिरिया बुङो, जों नक्सली नङा, जों सानफ्रोमबो गोजोनै दावबायगासिनो दं। भारत जोड़ो न्याय यात्राया 30 जानुवारि खालि महात्मा गांधी रुंसारि सानाव दिल्लीयाव जोबहैगोन होनना साननाय जादों। It's important because you are the future of this country. And the most important thing for this country is that all of you are allowed to think freely, to believe freely, to imagine freely, and to live the life that you want, not live the life that somebody else wants. Now, I wanted to come to your university and talk to you, embrace you, listen to you, understand what you are facing, and try and see in my own little way if I could have helped you. Now what happened? The Home Minister of India called up the Chief Minister of Assam, and then the Chief Minister of Assam's office called up the leadership of your university and said that Rahul Gandhi must not be allowed to speak to the students of this university. Right? Now, why is it important? It's not important that Rahul Gandhi comes or Rahul Gandhi doesn't come. That's not important. What is important is that you are allowed to anybody you want to listen to. Now, this is taking place not only in Assam. This is taking place in every single university, college and school of India. You are being told that you must blindly obey the RSS and the leadership of this country. You are being told that you should not have your own imagination. You are being told that you cannot speak your own language. You are being told that you cannot have your own history. That is what is going on here. So what is being done is you are being made blindly obedient. They are trying, brothers and sisters, to turn you into slaves. And I know that nobody, no force in this universe can ever turn you into slaves. It is not possible. So what I want to leave you with is this country belongs to you. This country has to follow your imagination. And nobody should be allowed to prevent you from imagining and thinking about the India that you want. Nobody should be able to stop you reading or writing in any language you want. Nobody should be able to stop you. Nobody should be able to stop you from listening, reading your tradition, your culture, your history. It's not about Rahul Gandhi coming here. That's the least important thing happening here. It is about you having an imagination, you being allowed to do what you want. I really appreciate that you have come here, because
You have come here. You have come here because you do not agree with what the Chief Minister is trying to do. You are not ready. You are not ready to accept a slave, an enslaved Assam. And I am extremely proud of you for that. भाईचारे की बात की, मोहब्बत की बात की, और मणिपुर से अरुणाचल, अरुणाचल से नागालैंड, नागालैंड से अब हम असम में आए। असम में आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो किसी को भी डरा सकते हैं। हम लोग आपके चीफ मिनिस्टर से डरते नहीं हैं। और भाइयों और बहनों, ये अभी बहुत जंप मार रहे हैं, ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, केस लगा रहे हैं। ये केस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके दिल में डर है। ये डरे हुए हैं कि असम की जनता तूफान जैसे, आंधी जैसे उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। असम में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मैं आपसे पूछता हूं, युवाओं से पूछता हूं, क्या असम में, असम के युवा को रोजगार मिलता है? मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उनका सिर्फ एक काम है, एक तरफ वो नफरत फैलाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है। और फिर जब असम की जनता एक दूसरे से लड़ना शुरू करती है तो आप सबके जेब में से पैसा उठा के बीजेपी के लोग ले जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक ट्वीट देखा, आपके चीफ मिनिस्टर का ट्वीट देखा। कहते हैं, ट्विटर में कहते हैं कि पिछड़ी जात वाले, दलित, जनरल कास्ट वालों के काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ये आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे बोला कि पिछड़ी जात वाले, जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इससे बड़ा अपमान पिछड़ी जात वालों का, दलितों का कोई नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम के पिछड़ी जात वाले लोगों से, ओबीसी वर्ग से, दलित वर्ग से आप चुप क्यों हो? आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? आपके चीफ मिनिस्टर ने आपका अपमान किया है, आपको कहा है कि आप जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। आप चुप क्यों हो? आपको चुप नहीं होना चाहिए। आपका अपमान किया जा रहा है, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखनी चाहिए। मैं रखता हूं। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, माइनॉरिटी किसी से कम नहीं है। भाई और बहनों, हम नफरत मिटाना चाहते हैं। हमारा काम असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में राहुल जी के प्रतिनिधि की तरफ से मैं और स्थानीय विधायिका बॉडवा खान गए। वहाँ पे हम दोनों ने प्रार्थना की, राहुल गांधी जी की जो शांति और सद्भावना की जो आशाएं हैं, उस सद्भावना और शांति की
आशा हमने अपनी प्रार्थना में व्यक्त की। बॉडवा थान में जितने भी पुजारी उस वक्त वहाँ पे थे, वे सभी पुजारियों ने कहा कि हमारी आशीर्वाद राहुल गांधी जी के साथ है। हमने पुजारी महाराजों को बताया कि राहुल जी स्वयं आना चाहते थे, लेकिन उनको बोला गया कि बॉडवा थान में सरकार पहले से ही कुछ आयोजित कार्यक्रम कर रही है और कुछ अशांति का वातावरण हो सकता है। लेकिन जब हमने वहाँ पे हम गए तो लगभग 10 बजे तक वहाँ पे किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति एकांत है। तो एक अफवाह, एक झूठ फैलाया गया प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके, भीड़ को लेके। ये झूठ सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। आज उन्होंने बॉडवा थान के इतिहास में एक काला दाग डाल दिया है। आज उन्होंने अपने इस अफवाह से हेमंत शंकरदेव की संस्कृति पर एक काला दाग लगाया है। हम वहाँ से निकले तो निकलते हुए एक महिला पुजारी ने कहा कि ये गामूसा, बॉडवा थान की गामूसा आप राहुल गांधी जी को दीजिए। वही आकर हमने राहुल गांधी जी को बॉडवा थान की निशानी की तरफ से सौंपा। पुजारियों ने कहा कि वे अपने प्रार्थना समाप्त करने के पश्चात जो भी उनका प्रसाद है वो राहुल गांधी जी को पहुँचा दें। आरो आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था। नोंथांमोना मोनसे आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोनदांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाइ बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाइ बेसेन होनानैनो आराम गोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो, जेरै एयार कन्डिशनिं, आराम गोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा, जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आराम गोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोनदांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।